हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ यूपी सैनिक स्कूल का जो 2024 में एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसके क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस करने जा रही हूँ। ये पेपर सेशन 2025 टू 2026 के एडमिशन के लिए था और इस क्वेश्चन पेपर का कोड मेरा सी है। सबसे पहले क्वेश्चन 1 का होगा आर क्लियरिंग, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 होगा आर बीइंग एरेडिक्टेड, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन 3 का होगा बीइंग डिस्ट्रॉयड, ऑप्शन सी। Question number 4, must start, option A. Question number 5, have, B. See question number 6. तो ये एक सेकंड पैराग्राफ में से दिया गया है. What mountain of work does the writer refer to? So हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, work that has to be done on Saturday. Then the phrase all in one lump means, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, all together at a go. Then question number 8, why does the author use actually in the sentence but time is actually very fairly distributed? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, because people complain that they get or don't get time. Next question, question number 9, which word is opposite in meaning to intimidating as used in the passage? So correct answer will be option number D, encouraging. The next page, question number 10. When does the pupil see that all the subjects are covered and he has free time? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, when the work is divided. क्वेश्चन नंबर 11, रिप्लेस करना है हमें अंडरलाइन वर्ड्स को उनके सिनोनिम से. So being inquisitive, I ran to where the crowd had gathered. इसका आंसर होगा curious, ऑप्शन नंबर ए. In his wrath, the king ordered the knight to be executed. So क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, anger. Then this is another paragraph and we have to start next question from here. Question number 13, the main purpose of the first paragraph is to. So इस question का आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, deny a common belief. Question number 14, the best title for this passage would be. So इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, a desert of ice. Then based on the information in the passage, what characteristic does the Sahara share with Antarctica? Question number 15 का आंसर होगा low precipitation. Question number 16, as used in the passage, which is the best definition for precipitation? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, moisture in the air that falls to the ground. Then question number 17, it can be understood that the word this in the clause this is evident means that. So इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर Africa has the lowest precipitation, option number A. Then question number 18, they were laughing at the clown. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, the clown was being laughed at by them. यहाँ पे करना हमें क्या है, हमें यहाँ पे suitable passive voice चूज करना है इस active voice का जो क्वेश्चन में दिया हुआ है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, had he broken his elbow in the accident? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, had his elbow been broken in the accident? Question mark. Now question number 20. So इस क्वेश्चन का आंसर होगा A, etiquettes and manners. Question number 21, fill in the most appropriate word. Social behavior dash by the unwritten code etiquette. So इस क्वेश्चन का आंसर होगा is the word. Question number 22, the etiquette should not be broken because the answer will be option D, all of these. Now question number 23, etiquette and culture are. So इसका आंसर होगा interdependent, option A. Now which word in the passage means insult? So question number 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, disparagement. Question number 25, how do you spell the word that means in opposition to a civil authority or government? So इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, seditious. Question number 26, how do you spell the word that means someone who is unwilling to spend? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, penurious. सो क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है ट्रिप कोलन गाश, तो इससे रिलेटेड हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्राई कोलन लाफ. देन 27 के बाद 28 का आंसर होगा टोपाज कोलन येलो, सो इससे रिलेटेड है ऑप्शन नंबर ए, एमेस्टिस्ट कोलन पर्पल. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 में क्वेश्चन है अ स्टाइल इन विच अ राइटर मेक्स अ डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेडेंटिक. नाउ क्वेश्चन नंबर 30, वन हु लव्स मैनकाइंड इज कॉल्ड, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिलैंथ्रोपिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, सो टू कैटर और टाटर का मतलब है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू कैच अ डेंजरस पर्सन.
नाउ क्वेश्चन नंबर 32, टू क्राई वोल्फ, इस क्वेश्चन का आंसर होगा टू गिव फॉल्स अलार्म. Then question number 33, exclaimed with sorrow that it was a very miserable plight. इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी. She said, what a miserable plight it is. Are you alone, my son? asked a soft voice close behind me. इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. A soft voice behind me asked if I was alone. Then question number 35. It says that we have to select a correctly punctuated sentence. So the answer of this question will be option number B. Spain is a beautiful country, colon, the beaches are warm, comma, sandy and spotlessly clean, full stop. Then question number 36. Here also we have to choose a correctly punctuated sentence. So the answer of this question will be option number C. Paul's neighbors were terrible, comma, so his brother's friend went round to have a word, full stop. Question number 37. Now desolate का correct synonym word होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी barren. 38 क्वेश्चन का जो कि है पेसिफाई, इसका सिनोनिम करेक्ट वर्ड होगा ऑप्शन नंबर सी काम. क्वेश्चन नंबर 39, एम्यूलेट का करेक्ट सिनोनिम वर्ड होगा इमिटेट, ऑप्शन ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 40, ऑडेशियस, इसका हमें करेक्ट एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड चूज करना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कॉशियस. देन क्वेश्चन नंबर 41, प्लॉसिबल, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा इरेशनल, ऑप्शन ए. देन क्वेश्चन नंबर 42, विवासिटी का करेक्ट एंटोनिम द अपोजिट वर्ड होगा ऑप्शन नंबर सी, they have fatigue. क्वेश्चन नंबर 43, insipid, क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, tasty. देन क्वेश्चन नंबर 44, persons living at the same time. सो अब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, contemporaries. स्टडी ऑफ बर्ड्स, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर होगा सी, ornithology. देन कम्स तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, senile. देन क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, glaring. नाउ क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैड. क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिक्स्ड. एंड देन क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रैंटिक. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हम लोग का जनरल नॉलेज का पोर्शन आ गया. ये चीज़ तो आप एकदम सही से इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए, जान लीजिए. हो सके कई क्वेश्चंस के आंसर आपको आते हो, जो क्वेश्चंस के आंसर आपको आते हो वो कमेंट बॉक्स में आप शेयर करिएगा. आपके आंसर्स कितने करेक्ट हुए हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. तो अब क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट होता है हम लोग का जनरल नॉलेज का फर्स्ट क्वेश्चन, और जो कि कह रहा है विच इंडियन स्टेट इज होम टू द काजीरंगा नेशनल पार्क नोन फॉर इट्स वन हॉर्न राइनोज, ऑप्शन ए, असम. नाउ क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट डज द टर्म जीडीपी रेफर्स टू इन इकोनॉमिक्स, ऑप्शन नंबर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन ए. नाउ व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, NaCl, सोडियम क्लोराइड. 54 क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन है हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, द आंसर विल बी ऑप्शन डी, एल्बर्ट आइंस्टाइन. क्वेश्चन नंबर 55, वेयर इज द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 56, विच कंट्री होस्टेड द 2024 समर ओलंपिक्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस. नाउ क्वेश्चन नंबर 57, विच रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ इजिप्ट, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइल. Now question number 58, which says which element has the chemical symbol Fe, obviously इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन. Which country is known as the roof of the world, इस क्वेश्चन में कई लोग को कंफ्यूजन हो रहा था कि नेपाल होगा या तिब्बत, सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तिब्बत. Now next question, क्वेश्चन नंबर 60, what is the study of earthquakes called, सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, seismology. क्वेश्चन नंबर 61, which state in India is the largest producer of coal, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड. क्वेश्चन नंबर 62, which is the largest organ in the human body, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्किन. स्किन इज ऑल्सो एन ऑर्गन, वी ऑल नो दैट स्किन इज वन ऑफ द 5 सेंस ऑर्गन्स. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 63, इन विच ईयर डिड द इंडियन पार्लियामेंट पास द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2000, ऑप्शन नंबर डी, 2005. Which country is the largest producer of silk in the world, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना. नाउ क्वेश्चन नंबर 65, which planet is known as the gas giant, इन ऑप्शंस में से आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जुपिटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 66, who wrote the famous Indian epic महाभारत, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यासा, जिनका पूरा नाम था वेद व्यास. नाउ क्वेश्चन नंबर 67, इन विच ईयर डिड इंडिया कंडक्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1974. Now next question, where is the International Court of Justice located, इस क्वेश्चन का आंसर होगा The Hague.
नाउ क्वेश्चन नंबर 69 विच सेज विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, ये तो सबको ही पता होगा, ऑप्शन नंबर डी स्टेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 71 सेज हु इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए एरिस्टोटल। क्वेश्चन नंबर 72 सेज हु इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हिप्पोक्रेट्स। Next question, question number 73. Who was the first Indian woman to win a gold medal at the Olympics? अब जो ये क्वेश्चन है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, या तो यहाँ पे गोल्ड नहीं लिखा होता तो हम लोग कर्णम मल्लेश्वरी पे आंसर टिका देते, या फिर यहाँ पे फर्स्ट इंडियन वुमेन की जगह फर्स्ट इंडियन लिखा होता तो हम लोग नीरज चोपड़ा पे कर देते। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। नाउ क्वेश्चन नंबर 74, विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात। देन क्वेश्चन 75, हु रोट द फेमस बुक गीतांजलि। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 76 सेज विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम हैज द मोस्ट मून्स। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी सैटर्न। देन क्वेश्चन नंबर 77, विच कंट्री होस्टेड द G20 समिट इन 2023। इस क्वेश्चन के आंसर से तो सभी लोग फैमिलियर होंगे कि इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इंडिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 78, Who is the current Chief Justice of India? कई लोगों ने इसका आंसर दिया चूट किया है, बट द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए संजीव खन्ना, क्योंकि करंटली संजीव खन्ना ही हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। क्वेश्चन नंबर 79, in which year did India launch the Digital India Initiative? The correct answer will be option D 2014. Question 80, what is the full form of UNESCO? So the correct answer of this question will be option A, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Now question number 81, what is the significance of International Yoga Day and when it is observed? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, promotes traditional exercise and is observed on June 21st. Now the next question, question number 82, what does the acronym NITI in Niti Aayog stand for? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, National Institute for Transforming India. Option number B will be the correct answer for question number 82. Now question number 83, which country hosted a 2023 FIFA Women's World Cup? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, both Australia and New Zealand together conducted 2023 FIFA Women's World Cup. Question number 84, who is the Secretary General of the United Nations as of 2024? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, Antonio Guterres. Question number 85, what is the national flower of India? ये क्वेश्चन तो सबको ही आता होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, नेम द कंट्री वेयर द अमेजन रेन फॉरेस्ट इज लोकेटेड। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्राजील। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 87, हु वॉन द 2023 ऑस्कर फॉर बेस्ट एक्टर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रेंडन फ्रासर। Then next question, question number 88, which metal is commonly known as liquid metal? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए mercury. The next question, question number 89, which says where is the headquarters of the International Monetary Fund IMF located? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी Washington DC. Next question number 90, what is the aim of the प्रधानमंत्री जन धन योजना? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी financial inclusion and bank accounts for all. Next question number 91, who is the current chairperson of the Indian Space Research Organization? Is option number D will be the correct answer, S Somnath. Question number 92, who is known as the father of Indian space program? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विक्रम साराभाई. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, what does URL stand for in web terminology? इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटेड. क्वेश्चन नंबर 94 says who was the first Indian woman to go to space? So the correct answer will be option number D Kalpana Chawla. Question number 95 says which Indian state is known for the Ajanta and Ellora caves? इस क्वेश्चन का आंसर होगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र. Then now next question number 96, what does NASA stand for? The correct answer will be option C, National Aeronautics and Space Administration. Now next question will be question number 97, which state in India is famous for the Chhau dance? अब Chhau dance के लिए हमारा वेस्ट बंगाल भी फेमस है, हमारा उड़ीसा भी फेमस है. So इस क्वेश्चन में भी डाउट है. Now question number 98, what is the full form of DRDO? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. Now question number 99, in which country are the headquarters of the Red Cross located? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड. Then question number 100, जो हम लोग का सेंचुरी पूरा हो चुका. Which state in India is famous for the Meenakshi temple? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101. क्वेश्चन नंबर 101 says the number of students scoring less than 40% marks in aggregate. का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 27. नाउ क्वेश्चन नंबर 102, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 32.
Now question number 103, इसका correct answer होगा option number D 6. Next question, और question number 104, the option number C 29%. Then question number 105, correct answer होगा option number B 30 to 40. Now next question, question number 106. इस question का correct answer होगा option number A 2 years. Now question number 107, इसका correct answer होगा option number B 1/4, means 1/4. Then question number 108 का answer होगा option number C पॉजिटिव और नेगेटिव का 13/4. नाउ क्वेश्चन नंबर 109 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4. क्वेश्चन नंबर 110 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 111 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 273 एंड 357. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8. देन नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 48 किलोमीटर पर आवर. Then next question, question number 114 of option number A will be the correct answer, 20 to 30. Then question number 15 will be option number C. The area of circle is the largest, then the area of square is the second largest, and the area of triangle is the least largest. Then question number 106 will be option number C, 70 centimeter square. Question number 117 option number C, 1540 centimeter square. Then question number 180, so correct option होगा option number A, C equals to 2S. Then question number 119, इस question का correct answer होगा option number D, means √3:1. Next question, question number 120, इस question का correct answer होगा option number B, C square is greater than A square plus B square. Now next question 121 का correct answer होगा option number B 6. Then next question, question number 122 का correct answer होगा option number C 3. क्वेश्चन नंबर 123, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 150 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 से द करेक्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी 3. देन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 12 + 8/√2. नाउ क्वेश्चन नंबर 126, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 40 सी, ऑप्शन नंबर सी 40. देन क्वेश्चन नंबर 127, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अ डिस्काउंट ऑफ 40%. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है हम लोग का ऑप्शन नंबर ए 17/15. देन क्वेश्चन नंबर 129, द वैल्यू ऑफ दिस इज आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए 1001/999. नाउ क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 131 ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 132 ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 133 अगेन ऑप्शन नंबर ए. देन क्वेश्चन नंबर 134 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अगेन. Next question, question number 135, the correct answer will be option number C. Question number 136, the correct answer will be option number B. Question number 137, the correct option will be C. Then question number 138, the correct answer will be option number A. Question number 139, the correct answer will be option number B. Question number 140, the correct answer will be option number D. Question number 141, the correct answer will be option number C. Then question number 142, the correct answer will be option number C. The question number 143 option will be C. Question number 144 B. Question number 145 D. Next question. Now question number 146, इस क्वेश्चन में डाउट है तो ये हम अभी छोड़ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 147 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 148 ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 149 ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 150 ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 151 ऑप्शन बी अगेन. देन क्वेश्चन नंबर 152 ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 153 ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 154 ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 155 ऑप्शन बी. Question number 156 option C. Question number 157 option B. Question number 158 option B. Question number 159 option C. Then next question number 160. The correct answer will be option A. Question number 161 D. Question number 162 D. Again question number 163 C. Then question number 164 में भी डाउट है, इसे भी हम छोड़ रहे हैं. Question number 165 C. Question number 166 A. Question number 167 40% मतलब ऑप्शन बी. Question number 168 option B. Question number 169 C. Question number 170 will be option number 39. Next question, question number 171. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. देन क्वेश्चन नंबर 172 ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 174 ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 174 will be option D. Then question number 175 option B. Question number 176 option B. Question number 177 option C. Question number 178 will be option number B. Then next question, question number 179 will be option number B. Question number 180 option A.
क्वेश्चन नंबर 181 ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 182 ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 183 ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 184 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 185 ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 186 ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 187 ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 188 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 189, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 190 ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 191 ऑप्शन ए, अगेन तीनों का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 192 ऑप्शन ए, इसका भी ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 193 ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 194 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 195, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 196 ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 197 ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 198 ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 199 ऑप्शन सी एंड क्वेश्चन नंबर 200 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है ही नहीं, तो हम लोग का अभी कंप्लीट हो चुका है। सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिए। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको मेरी सारी आपको मिलती रहे।